morning students, myself Professor Nasir Gowli from Pionata College, Bhusawal, and I am the teacher of your chemistry subject, and I will be teach you the first lesson of the 11th chemistry syllabus, which is name is some basic concept of chemistry. Okay, now student, that is before the starting of the first chapter, that is some basic concept of chemistry, we can discuss about the whole syllabus of 11th chemistry and their mark weightage of each chapter with option and without option. Okay, so starting the subject of chemistry, firstly we know about that what is mean by chemistry. आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, that is the definition of chemistry. So firstly we see that what is mean by chemistry. Now you know about that is chemistry. It is the branch of science that deal with the structure, composition and properties of matters and the chemical reaction in which one form of matter is converted into the another form is called as a chemistry. So you are welcome for our first lecture of the chemistry, in which firstly we discuss about the syllabus and their mark weightage. Now see here in your chemistry 11 book there is a total 16 chapter is included, and this 16 chapter is included in the syllabus are classified into the 4 various sections. That is the first section, which is consist of physical chemistry and inorganic chemistry, and second section which is consist of that is inorganic chemistry and organic chemistry. Okay, लेकिन बेटा इस साल जो बुक आई है उसमें ऐसा सेक्शन वाइज आपको डिफरेंशिएट दिया नहीं है, पूरी बुक सिंगल बुक है और उसमें आपको 16 के 16 चैप्टर एज इट इज दिए हैं. ओके, सो टुडे वी सी द mark weightage and the name of the chapter which is included in your 11th chemistry syllabus. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा अपन फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नाउ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इट इज मार्क विदाउट ऑप्शन इट इज 3 marks and with the option it is 5 marks. Okay, now see here the second chapter, that is which is introduction of analytical chemistry. Introduction of analytical chemistry, it is the second chapter which is mark without option it is 4 and with the option it is 6 marks. Third chapter, that is some analytical techniques. Some analytical techniques it mark with the without option it is 2 and mark with the option is 3. Okay, fourth number chapter which is one of the important chapter of our 11th chemistry syllabus, that is the structure of atom. Now see here beta, structure of atom is included for without option 5 marks and with the option it is 7 marks. Okay, next chapter, that is chemical bonding, fifth number chapter, which included 6 marks without option and 8 marks with the option. Redox reaction, it is for the 3 marks and with option it is for 4 marks. 7 number chapter, that is modern periodic table, it is for 4 marks and with option it is 6 marks. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड. ओके, अब आपको पता है जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड है इसे अपन एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं या फिर इसे अपन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ सी हियर the 8 number chapter is elements of group first and group second, which is marks without option it is 4 and with option it is a 6 marks. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका 9 नंबर, that is elements of group 13, 14 and 15.
अब इसको कितना वेटेज है बेटा, टोटल 6 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन इट इज 8 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है 10 नंबर चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ओके, दिस इंक्लूडेड फॉर 4 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट इज 6 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा एब्जॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। ओके, नाउ इसको दूसरा नाम है बेटा सरफेस केमिस्ट्री। एब्जॉर्प्शन एंड कोलाइड्स इट इज फॉर द व्हाट, दैट इज 3 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट इज फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। It is without option it is a 6 marks and with option it is a 8 marks। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा 13 नंबर, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, एंड इट इज फॉर द 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन इट इज अ 4 मार्क्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इट इज विदाउट ऑप्शन इट इज अ 6 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट इज अ 8 मार्क्स। नेक्स्ट एंड सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा जो 11th केमिस्ट्री सिलेबस में है, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है बेटा, इसमें आप अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड जो पढ़ने वाले। सो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है बेटा, ये आपके लिए टोटल विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 11 मार्क्स। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज जो चैप्टर को है उसका नाम है बेटा हाइड्रोकार्बन्स। And the last and very important chapter, chemistry in everyday life. Okay, it is for the 3 marks without option and for the option marks with option it is 4. Okay, so यहाँ पे आपका जो फाइनल एग्जाम का थियरी पेपर रहता है बेटा, वो रहता है टोटल 70 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन इट इज 98 मार्क्स। तो इस तरीके से इस सारे चैप्टर के वेटेज होते हैं। अगर इसके हमने टोटल की विदाउट ऑप्शन तो ये 70 मार्क्स है एंड विद ऑप्शन इट इज अ 98 मार्क्स। मतलब अगर आपका थ्योरी पेपर, फाइनल एग्जाम का जो थ्योरी पेपर होता है बेटा, वो पूरा 98 मार्क्स का रहता है और आपको सॉल्व करना पड़ता है 70 मार्क्स, और बचे जो 30 मार्क्स रहते हैं ये आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं बेटा। सो ऑल द स्टूडेंट्स, सब में आप एक बार ये मार्क्स वेटेज देख लेना है बेटा, और इसे अच्छे से आपकी बुक में नोट डाउन करना है। ओके, सो इन द टुडेस लेक्चर वी सी द फर्स्टली दैट इज वेटेज एंड द सिलेबस ऑफ 11th केमिस्ट्री। राइट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, justly we see that is the chemistry syllabus for the 11th standard, and also we see the mark weightage for the final examination of each chapter. Now see here, due to the corona effect, okay, that is in the year of 2020 and 2021 there is 25% syllabus is reduces in each subject. Okay, now in this year, that is the college and the offline classes is not started. Okay, so the class will be started online, and therefore due to the corona effects in this year the 25% of the syllabus of chemistry is also reduces। मतलब बेटा जो 2020 और 2021 एकेडमिक ईयर में 25% जो केमिस्ट्री का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, सिमिलरली इस साल भी आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें केमिस्ट्री सिलेबस से 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस साल भी। ओके, और इस साल हर चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक डिलीटेड हुए हैं। अब ये कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे कोई कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर से डिलीटेड हुए बेटा। सो आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है उसे निकालना है, और ये जो पॉइंट्स इस साल
आपके सिलेबस से डिलीटेड है उसे टिक मार्क करना है, क्योंकि उसके ऊपर फाइनल एग्जामिनेशन में आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। सो सबसे पहला जो डिलीटेड टॉपिक्स है दैट इज 1.1 इन द चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद 1.2 दैट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद है बेटा 1.2.1 दैट इज मैटर। देन नेक्स्ट 1.2.2 that is pure substances versus mixtures, and 1.2.3 that is states of matters. Then next point that is 1.4.1 that is law of conservation of mass. उसके बाद बेटा 1.4.2 law of definite proportion, and 1.4.3 that is law of multiple proportion. And the last point which is related in the chapter number first, that is Dalton atomic theory. तो बेटा ये जो सिलेबस है ये सिर्फ आपके कॉलेज एग्जामिनेशन दैट इज जो फाइनल एग्जामिनेशन रहते हैं उसके लिए डिलीटेड हुए, लेकिन आपको सीटी नीट और जेई जो एग्जामिनेशन रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, उसके लिए अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है बेटा। सो आपको करना तो सभी है, लेकिन जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन पेपर होंगे उसमें ये पॉइंट आपने नहीं भी पढ़ के आए तो भी आपको चल सकता है। ठीक है बेटा। सो आज अपन ने सबसे पहले वेटेज देखा, फिर उसके बाद डिलीटेड टॉपिक्स देखे। अब यहाँ पे अपन जो फर्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे बेटा जो सिलेबस में है। ओके, सो तब तक आप ये राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। Now students, justly we see the deleted topic of the chapter number first, that is the some basic concept of chemistry. Now, so in the today's lecture we start our first point, that is properties of matters and their measurements. Okay, now see here, you know about that is matters show the two types of properties. That is first is the physical properties and second is the chemical properties. Now what is the physical properties of matters and what is the chemical properties of matter and its measurement, that can be seen in the today's lecture. तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा that is the physical properties. अब ये physical properties क्या रहती है बेटा? That is the physical properties, these properties which can be measure or observe without change in chemical composition and its identity. देखो बेटा मैंने अभी क्या बोला आपको, जो मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है बेटा वो कौन सी रहती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब these are the properties which can be measured or observed without change in the identity or the chemical composition of a substance. अच्छा सर ये तो हमको समझ गया, लेकिन एग्जांपल जैसा आप बोलते हो बेटा कलर, ओके, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, these are the some physical properties. Okay, these are the some physical properties of matter, okay, which can be measured and observed without change in the identity and the composition of matters. ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले आप दिखेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो आपका फर्स्ट पॉइंट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ दिस properties of matters or substance, these properties of matters which can be observed and measure without changing
changing in chemical composition, in chemical composition and identity of matters or of substance। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे इतना तो समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट जब आप करते हो या फिर उसको ऑब्जर्व करते हो तो उनकी आइडेंटिटी एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज डज नॉट चेंजेस। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो बेटा, दैट इज डेंसिटी, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, और उसके बाद दैट इज कलर। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये प्रॉपर्टीज क्या नहीं होती है बेटा, विदाउट चेंजिंग वी कैन एब्जॉर्ब एंड मेजर। ओके, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज रहती है बेटा, फर्स्टली इसको आपने समझा होगा, सो इसे लिख लीजिए। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टीज is called as a chemical properties। अब chemical properties of matters, okay, so यहाँ पे बेटा जब अपन ये property, that is these are the property in which can be measured or absorb। जब आप इसे measure करते हो या फिर इसे आप क्या करते हो बेटा, absorb करते हो, तो यहाँ पे इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट इज these are the properties in which the substance undergo change in a chemical composition। ओके, तो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन कोल इज बर्न विद द ऑक्सीजन इट गिव द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होगी कार्बन की और ऑक्सीजन की, तब वहां पे आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सिमिलरली अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम इज बर्न विद द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन में आपको क्या समझना है बेटा, कि यहाँ पे इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है, सो अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे अपन बोलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ सी हियर इन दिस पॉइंट these are the properties in which substance undergo change in chemical composition और इसी के साथ वो उसकी क्या, दैट इज आइडेंटिटी भी बेटा लॉस करता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के वक्त में अपन ने देखा कि वहां पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आप ये प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या करता है बेटा, अंडरगो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे अपन इसके एग्जांपल देखेंगे, दैट इज व्हेन कोल इज बर्न with oxygen it give carbon dioxide gas, that is it give the CO2। okay, so यहाँ पे coal means क्या होता है बेटा, that is carbon, और you know about that oxygen gas, और जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है बेटा। ठीक है बेटा, सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें अपन ने आज स्टडी की बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। ओके, सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हो बेटा, दैट इज व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्न विद द इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। सो इस तरीके से आज आपने एक पॉइंट क्लियर किया है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स।
अगले लेक्चर में बेटा अपन देखेंगे दैट इज their measurement, that is physical and chemical properties and their measurement. Okay, so आज के लिए इतना ही बेटा. Thank you very much. Bye.